شیئر کریں۔ یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج جو ہمارے پیغمبر ہیں وہ پہلے بھی ہمارے چرچ میں کافی دفعہ آ چکے ہیں۔ عالی جناب پروفیسر پادری دلشاد اسلم صاحب گجرانوالہ پریسبیٹری کے ماڈریٹر ہیں اور گجرانوالہ تھیولوجیکل سیکنڈری میں بطور وائس پرنسپل خدمات سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ سلیم کالونی اور ڈھونگرا والا چرچ میں 5 سالی خدمت بھی سر انجام دیں۔ سو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں نے ان سے سیکھا ہے بطور استاد وہ پڑھاتے رہے اور آج وہ خدا کا کلام ہم سب کے ساتھ بانٹیں گے۔ زور لگتا ہے۔ اسی کے مقدس اور عظیم نام میں آج صبح آپ سب کو سلام۔ آج صبح میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ جیسے ادنا انسان کو اپنا خادم بنایا ہے تاکہ میں اس کی انجیل کی منادی کروں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ہم خدمت بھائی پادری جاوید صاحب کا اور اپنی بہن کرن کا بھی اور اروپ سشک کا اس بات کے لیے کہ آج صبح انہوں نے دعوت دی کہ میں آپ لوگوں کے درمیان کلام سناؤں، جبکہ آج خصوصی عبادت بھی ہے۔ ایلڈرز جو چنے گئے ہیں یا ان کی آج مخصوصیت بھی ہے، تو میرے مناسب جانا کہ خروج کی کتاب میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ خروج کی کتاب کے 17ویں باب میں سے 8ویں آیت سے 16ویں آیت تک آپ نے تلاوت سنی، اور اس تلاوت کا یا حصے کا جو مرکزی مضمون ہوگا وہ ٹیم ورک ہے۔ آپ نے یہ تلاوت سنی اور ایک جگہ کا نام ہے اور چند بندوں کا، انسانوں کے ناموں کا بیان ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل رفدیم میں پہنچے اور انہوں نے کئی ایک مسائل کا سامنا کیا۔ 16واں باب اس بات کا بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے وہاں پر پہلا مسئلہ یہ دیکھا کہ وہ خوراک گندم جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا 45 دنوں میں، کیونکہ 16واں باب اس بات کا بیان کرتا ہے کہ وہ دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں پہنچے، اور رفدیم کا مقام وہاں پر ہی ہے، اور ان کے پاس خوراک ختم ہو گئی۔ خدا نے معجزہ کیا اور ان کو خوراک مہیا۔ اب ان کے سامنے ایک اور مسئلہ، ایک ایسی قوم جس کا نام عمالیق لکھا گیا ہے، عمالیقیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ عمالیقی جنگجو لوگ، جنگ میں ماہر، تلوار چلانے میں ماہر، نیزہ چلانے میں ماہر، اور بنی اسرائیل جنہوں نے 400 برس تقریباً مصر میں غلامی کی تھی، ان کو نہ تلوار چلانی آتی تھی، نہ بھالا چلانا آتا تھا، اور نہ ہی کسی طرح کا وہ جنگی ہتھیار استعمال کرتے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی مزدوری میں، اینٹیں بنانے میں، بٹوں پر گزاری، اور
वो जानते थे कि हमें लड़ना नहीं आता। जिस वक्त अमालेकियों को उन्होंने देखा, वो परेशान, वो सोचने लगे कि ये जंग के माहिर हैं, ये अच्छे जंगजू लोग हैं, इनके पास बड़े हथियार हैं, हम इनके साथ कैसे जंग करें। नवी आयत इस बात का बयान करती है कि मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। 4 लोगों का बयान है। यशवा एक जवान शख्स है, मूसा और हारून एक 80 वर्ष का है, एक 83 वर्ष का बूढ़ा है, और हूर भी तकरीबन 85 या 90 वर्ष का बूढ़ा है। 3 बूढ़े हैं, एक जवान है, और तीनों ने मिलकर मशवरा किया हमें क्या करना चाहिए। और मूसा यशवा से, जो जवान था, यंग था, उससे कहने लगा कि तू जा, हमारे पास से कुछ जवान ले जा और जाकर अमालेकियों से लड़। यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब मूसा ने यशवा को हुक्म दिया तो यशवा ने फर्माबरदारी की। उसके पास कोई काबिल माहिर फौज नहीं, ऐसे कोई हथियार नहीं। मूसा ने कहा है, और वो नौजवानों को लेकर, वो थोड़े से आदमियों को, लश्कर को लेकर अमालेकियों से लड़ने के लिए चला गया। हमारी जदीद दुनिया, हमारे मुआशरे, आज एक बड़ा मसला ये है कि नौजवान बुजुर्गों का हुक्म नहीं माने। वो चाहे हमारी औलाद, वो चाहे चर्च में यंग जनरेशन, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी, नौजवान नस्ल को बुजुर्गों का हुक्म मानना, फर्माबरदारी करना पसंद नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम देती है कि बुजुर्गों के फर्माबरदार रहो, माँ बाप का हुक्म मानो, और बुजुर्गों के हुक्म के ताबे। यशवा अपने बॉस का, अपने उस्ताद, अपने मालिक का फर्माबरदार रहा, और उसने चंद नौजवानों को, चंद लोगों को लिया और अमालेकियों से लड़ने चला। मूसा ने यशवा से एक वादा किया। उसने कहा, मैं खुदा के लाठी लिए हुए कल पहाड़ पर खड़ा हूंगा और दुआ करूंगा। और मूसा ने अपने साथ 2 और आदमी ले, एक हारून और दूसरा हूर। हूर के बारे में तारीख ये बात बताती है, बाइबल में नहीं लिखा कि हूर वो शख्स था जो उनके रिश्ते में बहनोई था, या उनकी बड़ी बहन मरियम का शौहर। इस तरह से मूसा, हारून और हूर तीनों शख्स पहाड़ पर चले गए और यशवा जंग लड़ने लगा। लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इस्राएल गालिब रहते, और जब उसके हाथ लटक जाते तो अमालेकी गालिब हो जाते। फिर जब मूसा थक गया तो हूर और हारून ने एक पत्थर लेकर वहां रखा और मूसा को उस पर बैठा दिया, और एक हाथ हूर ने पकड़ लिया और एक हाथ
हारून ने पकड़ लिया और उसके दोनों बाजू खड़े कर दिए। हमारे घरों में, खानदानों में एक बड़ा मसला है, हमारी कलीसियाओं में भी ये मसला है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे वो लोग जो कमजोर होते हैं, बजाय इसके कि हम उनकी मदद करें, स्ट्रेंथन करें, हम उनको गिराने की कोशिश करते हैं, हम उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, घरों से निकालने की कोशिश करते हैं। मूसा से वो ये भी कह सकते हैं कि ये लाठी हमें पकड़ा दे, हम उठा लेते, लेकिन वो जानते थे कि ये मूसा की खिदमत है, इसलिए लाठी मूसा के हाथों में ही रहेगी। हमें जो काम करने की जरूरत है कि हम उसके बाजू उठाए रखें, उसके बाजुओं को कभी करें, मजबूत करें। एक दफा का जिक्र है कि कलीसिया के चंद लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम अपने पादरी को निकालना चाहते हैं। मैंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा कि वो बूढ़े हो गए, अब कलाम नहीं सुना सकते। मैंने कहा जब वो यहाँ पर आए थे, आप क्यों लेकर आए थे, क्या वजह थी कि आपने इन्हीं को पसंद किया? पाकिस्तान में और भी बहुत सारे पासवान हैं, पादरी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम इनको लाए थे, ये बड़े जोश के साथ और बड़ा अच्छा इल्मी कलाम पेश करते हैं, पैगाम देते हैं। तो मैंने उनसे कहा वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें घर से नहीं निकालना, आप ऐसा करें, उनको पासवानी खिदमत पर रहने दें, पैगाम सुनाने के लिए आप किसी नौजवान खादिम को रखें। हमारे बहुत सारे नौजवान लोग घरों में, खानदानों में, कलीसियाओं में जब कोई कमजोर होता है, उसकी मदद करने की बजाय, स्ट्रेंथन करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको लंतान करते हैं। लेकिन हारून और हूर ने ये खिदमत की कि उसके हाथों को पकड़कर ऊपर उठा दिया, और जब तक वो उसके हाथों को ऊपर किए थे, लिखा यशवा अमलेकियों से लड़ता रहा और उसने तलवार की धार से शिकस्त दी और अमलेकियों को शिकस्त दी। अमलेकियों पर वो घाले आए और उन्होंने उस जगह का नाम यहोवा निस्सी, यानी यहोवा हमारा झंडा है, खुदा हमारा झंडा है, खुदा हमारी फतह। आसो मैं चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 लोगों का मैंने आपके सामने बयान किया, चार लोगों की एक टीम, 4 लोगों को खिदमत दी गई। एक की खिदमत यह है कि उसने लड़ना, एक की खिदमत यह है उसने खुदा की लाठी उठाकर रख ली, 2 की खिदमत यह है कि उन्होंने लाठी उठाने वाले की मदद कर दी। और जब फतह हुई तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये फतह मेरी वजह से हुई, ना यशवा ने ये कहा कि अगर मैं जंग ना लड़ता, मैं देखता तुम कैसे जीत सकते, ना मूसा ने ये कहा अगर मैं लाठी ना उठाता, मैं देखता तुम कैसे जीत सकते, ना हारून और हूर ने ये कहा कि मूसा हम देखते अगर तेरे बाजू ना पकड़ते, बाजू ऊपर ना उठाते, तो कैसे तो अपनी लाठी ऊपर रख सकता। बल्कि आखिर में लिखा है सब ने कहा खुदा ने हमें फतह दी है, जला खुदा के नाम को दिया। उन्होंने कहा खुदा ने हमें फतह दी है, वो यहोवा निस्सी है, हमारा झंडा है, खुदा हमारा झंडा। हमारी कलीसियाओं अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। कलीसियाओं में आज जो पार्टीबाजी है, फिरकाबाजी है, जो नफाक और झगड़े में, वो सिर्फ इसी वजह से है कि
पासवान, खादी, एजेंट्स देकर अपनी अपनी खिदमत पहचानने में नाकाम हो चुके हैं। खिदमत चर्च में छोटी हो या बड़ी हो, खुदा उसका सिरा नस्ल देगा। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, करोड़ 35वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि बसली एल बिन उरी बिन हूर को खुदा ने हिकमत से और रूह से और रूह कुद्स से मामूर किया। वो हैकल की कैमल इज्तिमा की हर एक चीज बनाई। बसली एल बिन उरी बिन हूर का पोता था और उसकी तीसरी नस्ल को भी खुदा ने बरकत दी कि वो कैमल इज्तिमा में खिदमत करे, उन चीजों को बनाए। हूर ने किया क्या था, काम उसका कितना था उस जंग में। फर्क उसने हारून की कोली को पकड़कर या उसके बाजू को पकड़कर ऊपर किया था। सिर्फ इतनी खिदमत की थी, दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, और खुदा ने उसकी तीसरी पुष्ट को भी बरकत दी थी, सरफराजी थी। यशवा को जो खिदमत दी गई, उसने वो खिदमत की। मूसा को जो खुदा ने खिदमत दी, मूसा ने वो खिदमत की। हारून और हूर को जो खिदमत दी गई, उन्होंने वो खिदमत की। हमारी कलीसियाओं में मसाइल इसलिए हैं कि पादरी चर्च का इंतजाम करता राइटर कलाम सुना। आप अमाल की किताब उसका 6वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत देखें, वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है, जब कलीसिया में शिकायत होने लगी तो पतरस और रसूलों ने ये बात कही कि मुनासिब नहीं कि हम कलाम की खिदमत को छोड़कर, मुनादी को छोड़कर इंतजाम करें। उन्होंने ये कहा कि अपने में से नेक नाम और रास्तबाज दुआ को शख्स चुन लो ताकि वो कलीसिया का इंतजाम करे। आज तक प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में यही निजाम चलता है। और रसूलों ने कहा हम कलाम सुनाने में और दुआ करने में मशगूल रहे। हमें पादरियों को दूसरी खिदमत भी दे दी। अब उनका ध्यान कलाम सुनाने या दुआ करने की तरफ नहीं। हमने उनको थाने भी ले जाना है, हमने कचहरी में भी गवाही दिलानी है, हमने पता नहीं क्या क्या काम उनको बता दिए, इसलिए वो भी अपनी खिदमत से हट। और एडल्स वो जो काम पादरियों के करने वाले उन्होंने ले लिए। और जब कोई भी अपनी जगह से हट जाएगा तो फिर खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलेगा। जब कोई भी अपनी खिदमत को भूल जाएगा, वहां पर 3 पूरी फेल हो जाए। अगर किसी गाड़ी के टायर उसके छत पर रख दिए जाए तो मेरा भी ख्याल गाड़ी चल सकती है। या स्पेयर अपनी जगह से उखाड़ कर आप किसी टायर पर लगाते हैं, उसको घुमाते रहे, गाड़ी नहीं चल सकती। इन चारों लोगों जिसको कहा गया कि तूने लड़ना है, वो लड़ने के लिए चला। जिसको कहा गया कि तू लाठी हाथ में उठाकर खड़ा है, वो लाठी उठाए खड़ा। और जिनको कहा गया कि तूने इस शख्स को स्ट्रेंथन करना है, जो दुआ कर रहा है, जैसे लाठी पकड़ी है, और हारून दोनों उस खिदमत के लिए मखसूस है। उन्होंने कोई ज्यादा खिदमत नहीं, सिर्फ हारून के हाथ पकड़े हैं, हूर की औलाद को, नस्ल को खैमा इज्तिमा बनाने का काम दिया गया। और हारून की नस्ल को यह खिदमत दी गई कि वो नस्ल का नस्ल काहे। कभी कभी हम चर्च में छोटी खिदमत करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं जब पादरी बैठता है हम भी बैठे, हम चाहते हैं जब क्वायर बैठती है हम भी बैठे।
हमें अपनी अपनी खिदमत पहचानने की जरूरत है। और सबसे बढ़कर 105वें बाब में खानदान का बयान, जिसमें इस बात का बयान है कि मसीह जो है वो कलीसिया का सर। कुर्सियों पहले बाब के 18वीं आयत में भी लिखा गया कि मसीह जो है कलीसिया का सर है। जलाल हमने किसको देना, किसके लिए हमने काम करना। एक पासवान काम करता है, वो भी खुदा के जलाल के लिए करता है। एल्डर्स काम करते हैं, वो भी खुदा के जलाल के लिए करते हैं। कुआर अपनी खिदमत करती है, वो भी खुदा के जलाल के लिए करती है। लेकिन अब जो काम करता है वो भी खुदा के जलाल के लिए करता है। और जो गेट पर पहरा देता है, चौकीदारा करता है, वो भी खुदा के जलाल के लिए करता है। और जब सारी टीम अपना अपना काम, अपनी अपनी खिदमत ध्यानदारी और वफादारी से करें, इब्लीस कितना भी चालबाज, कितनी भी उसके पास महारत, उसके चेले चपाटों के पास कितने भी वसाइल, वो कलीसिया को शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि कलीसिया खुदा यीशु मसीह के लहू के वसीला से बनी है और कलीसिया यीशु मसीह की चट्टान पर है। लेकिन हमारी कलीसिया इसलिए कमजोर है, पार्टीबाजी है, झगड़े हैं, क्योंकि हम अपनी अपनी खिदमत को पहचान नहीं, हमने अपनी अपनी खिदमत को ईमानदारी और वफादारी से नहीं। इसलिए आज सुबह मैं बड़े मुख्तसर वक्त आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। खसूसी तौर पर आज हमारे वो भाई जिनको एल्डर के लिए चुना गया, उनकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि आपकी जो खिदमत है वो कलीसिया का इंतजाम करें, इबादत का इंतजाम करना है, इबादत के लिए जगह तैयार करना, पासवान की माली मदद के लिए कलीसिया को बताना, कलीसिया से चंदा इकट्ठा करके, जिसको हम पास्टर फंड कहते हैं, वो पासवान के लिए इकट्ठा करना। आपने कलीसिया में अगर किसी घर में कोई बीमार है, बीमार कुर्सी करनी है, भाई साहब को बताना, भाई साहब को लेके जाना। आपका ये काम नहीं है भाई साहब आज तक छुट्टी कर लो, मैं आप ही कराऊं। आपका ये भी काम नहीं है। मुझे इन बातों का तजर्बा है। मेरे पास मैं कलीसिया में गया, शायद की इबादत थी, वहां पर एक एल्डर उठकर शीरे को प्याले में उधेलने लगा, तो मैं उसकी मखसूसियत कर रहा था, तो मैंने कहा साहब ये आपका काम नहीं, आप बैठ, जब मैं आपसे कहूंगा आप डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को देने के लिए मदद करें। और किसी ने बाद में मुझसे कहा कि भाई साहब हमारे एल्डर तो हमेशा ऐसा ही करेंगे। मैं कहा इसीलिए आपका कोई भी पादरी 2 साल से ज्यादा नहीं देखा। और आज सुबह मैं ये बातें बताना चाहता हूं नए बनने वाले एल्डर को और पुराने एल्डर को। खुदा ने आपको फजल दिया, आपको जो भी खिदमत दिया, या जिन जिन को जो भी खिदमत दी है, साज बजाते हैं, गाते हैं, बाहर गार्ड है, पहरा देता है, चौकीदारी करता है, सबकी अपनी अपनी खिदमत। लेकिन जो भी ईमानदारी और वफादारी से खिदमत करेगा, खुदा उसको उसकी नस्ल को बरकत देगा। हारून और हूर की मैंने मिसाल आपके सामने रखी। हूर की नस्ल को ये बरकत मिली कि उसने खेलना जितना की चीजें तैयार। बसलिए बिन उरी बिन हूर का पोता था, उसके बारे में लिखा है खुदा ने उसे रूह अल्लाह बख्शा, पाक रूह से नवाजा है, हिकमत दानाई से, और वो सारी चीजें करी। और हारून की नस्ल से कहा कि ये नस्ल दर नस्ल का है। इसलिए आज सुबह चर्च में जिस को भी जो खिदमत है, संडे स्कूल की है, क्वायर लीडर की है, साज बजाने की है, गीत गाने की है, चर्च में सफाई करने की खिदमत कोई भी बड़ी या छोटी नहीं। अगर आपके ज़हन में कभी ये बात आए
कि सफाई करना छोटी खिदमत है, तो अपने यीशु मसीह को देखें जो सबसे अदना खादिम वाली है, जो सारे खादिमों का भी खादिम बन गया और उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। उसकी खिदमत को देखें और उसने कहा तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, वही खुदा की बादशाही में बड़ा हो। लेकिन अगर हम यहाँ बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, खुदा की बादशाही में छोटे लगेंगे। इसलिए आपको जो भी खिदमत दी गई टीम वर्क के साथ, जैसे पास भाग लीड करता है, क़यादत करता है, कायद लीडर है, आपको बताना मैंने पहले ये बात कही कि यशुआ लड़ा नहीं है मूसा से कि ये क्या किया तूने, मैं कभी लड़ा नहीं, मेरे पास तलवार थी, मेरे पास कुछ नहीं। उसने कहा, मूसा ने कहा मुझे करना है क्योंकि वो मेरा कायद है, लीडर है। और फिर मूसा ने भी तो कमिटमेंट की कि मैं कल पहाड़ पर खड़ा हुआ खुदा की लाठी लिए हुए दुआ कर, उसने भी अपनी कमिटमेंट को पूरा और खुदा ने उन्हें फतह बख्शी और पूरी टीम ने इस बात का इकरार किया कि खुदावंद हमारा झंडा, खुदावंद ने हमें फतह बख्श दिया। किसी ने ये नहीं कहा मेरी वजह से, उन्होंने कहा खुदावंद ने ही फतह बख्श। खुदा ने इस कलाम की वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शी।